Fantastic. Thank you for your very, very special gift. Thanks a lot. Thank you. Thank you. And we shall see you with us, okay? And you will see Prime Minister Modi again very soon. Thank you. So, would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. Thank you. Thank you. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. I'm very excited. You come just to visit us 3 days, that's it. You come in a big place, big country, not Israel, small country, 8 million. You have more million and 500 million people. And if you can come here, remember Moshe, because you love Moshe and you love all the people, I love you also. Thank you, and I Thank you. Yeah. Don't forget. And I come to Mumbai. Grandfather, Gabi, the father from Gabi. Because I'm not American, but this is my And you country. especially came. Yes, this is my Great. country, 7 generations. And besides them, I want to tell you about India. I visit a lot of Indians, I visit a lot. The whole people around the world, the rich people, but they want to invest a lot of money in India. And they're going to meet me together since the tragedy. And they asked me to make nice places for them can come to get all services what they need. Religious service. Religious services. This means praying, eating, kosher, everything what they need. So, President, I know you're a friend from the family, you're a friend from Israel. Like what I tell you, you're 7 generations in Israel, but you're just in America to do good things. Help me to continue the goodness and kindness for my son, but he got killed for that. And you have the power to do it. אפשר אלינו? ראש הממשלה אלינו? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोशे से मिलते हुए मुंबई के छाबर हाउस में 26/11 का वो आतंकी हमला, जिसमें मोशे को बचा कर ले जाने वाली नानी उसके साथ आपको दिखाई दे रही है तस्वीर में। पीछे बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री ने न्योता दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। Both can speak same language. תודה רבה. תודה רבה. Every weekend she's going to see him. I mean, if she's losing, תודה רבה. I want to give you a blessing, a lot of success in everything you do. This is the place for forever. All the best wishes, don't forget on the paper when I ask you. And I and appreciate I'm it. going back to US. मोदी मोशे से मिलते हुए बीच में आप देख रहे हैं, मोशे 2 साल का था जब छाबर हाउस में हुए हमले में 26/11 में उनके माता पिता मारे गए थे, लेकिन अब 10 साल का हो गया है। उनके दादा दादी आपको उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। ये परिवार इंतजार कर रहा था, उन्हें भी एहसास है इस लम्हे का कि ये लम्हा कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से ये तय किया कि वो मोशे से मिलेंगे। मोशे को बचाने वाली नानी भी वहीं पर है। वो नानी भारतीय थी और मोशे को छाबर हाउस से लेकर भाग खड़ी हुई, जिनकी वजह से माता पिता नहीं बच पाए, लेकिन मोशे को बचाने में वो कामयाब रही। हर किसी ने उनकी नानी की बहादुरी का दाद उस वक्त दिया था और कहा था कि देखिए किस तरह से इस बच्चे की जान बचा दी।
वो बच्चा वापस अपनी दादा दादी के पास गया। ये मोशे को आप देख रहे हैं, अब 10 साल का बच्चा हो गया है। गिनती याद है उसे, 1 से लेकर 10 तक की गिनती हिंदी में जानता है। स्पष्ट हिंदी नहीं बोल पाता, लेकिन हिंदुस्तान जाना चाहता है, मुंबई जाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ न्योता दिया, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि मैं जाने वाला हूं भारत, तो तुम मेरे साथ चलना। यानी सब कुछ इंस्टेंट मामला चल रहा है। न्योता भी स्वीकार करने वाला भी सामने, और उसी के साथ आगे की प्लानिंग भी कि मोशे साथ जाएगा। दो देशों के रिश्ते में देखें तो यह एक भावुक लम्हा, किस तरह की परेशानियों से यह परिवार गुजरा होगा आप समझ सकते हैं। माता पिता, आज मोशे के माता पिता जिंदा नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए दोनों देश के नजरिए से देखें तो यह लम्हा बेहद महत्वपूर्ण और भावुक भी। आतंकवाद का सामना करना, उससे जंग लड़ना। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जानते हैं कि हमने न जाने कब से आतंकवाद के साए को झेला है, और 26/11 के वो दिन जब याद आते हैं तो हर कोई सिहर जाता है, जब आतंक का वो भयावह तांडव मुंबई में रचा जा रहा था। वहीं से बचकर भाग निकला था 2 साल का मोशे। सौगात भी एक दूसरे को लिए जा रहे हैं। मोशे ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में शुरू में प्रधानमंत्री के लिए कुछ पढ़ा भी वहां पर, जिसमें नीचे में लिखा था, आई लव यू प्राइम मिनिस्टर। ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ 2008 की वो खौफनाक तस्वीर है जब नानी 2 साल के मोशे को अपने सीने से लगाकर भाग निकलने में कामयाब रही थी। पल भर के लिए भी उसे नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक तस्वीर के सामने से वो लेकर मोशे को भागने में कामयाब रही थी। उसके माता पिता को बड़ी बेरहमी से वहां पर मार दिया गया था, लेकिन मोशे की नानी ने वो बहादुरी दिखाई जिसकी कहानी दिल्ली से लेकर तेल अवीव, यरूशलेम तक बताई गई कि 2 साल के मोशे को लेकर इस नानी ने कैसे उसकी जिंदगी बचाई। 26/11 का वो आतंकी हमला, वो खौफनाक नजारा, और उन सब के बीच 2 साल की एक जिंदगी को एक खूबसूरत जीवन दे पाना, ये नानी की कामयाबी थी। अपने सीने से उसे लगाए। आज भी कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं मोशे को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ रिश्ता बन गया था। जो न्योता दिया गया वो प्रधानमंत्री ने दिया मोशे को, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम साथ लेकर चलेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जिजी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, दरअसल बातचीत तो होनी है उन तमाम समझौतों पर, भारत और इजराइल के रिश्तों पर, लेकिन ये भावुक लम्हा, प्रतीकात्मक रूप से आतंक के खिलाफ जो दोनों देश अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, उसमें इस लम्हे का अपना ही महत्व। सुधांशु जी, ये निश्चित रूप से ये जो लम्हा है ये भावुक भी है और इसमें एक संदेश भी है। संदेश में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और इजराइल में एक समानता है कि ये दोनों देश एक साथ अस्तित्व में आए थे 47 और 48 में, और पहले 30 साल में दोनों ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं। भारत ने 48, 62, 65 और 71, और इजराइल ने 49, 57, 67 और 73। उसके बाद 70 के दशक में सबसे पहले इजराइल आतंकवाद का शिकार हुआ, और 70 के दशक के अंत में हमारे यहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पंजाब में शुरू हुआ था। तो अगर हम देखें तो हमारी यात्रा में कई चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। और एक और बात है, जिस समय डिसाइसिव लड़ाई हमने जीती है सन 71 में, और 73 में 4th अरब इजराइल वॉर उन्होंने जीती, जिसके बाद आतंकवाद किया जाए ये हमारी विरोधी ताकतों ने तय किया। उस समय दोनों का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी और उनके यहाँ गोल्डा मायर। मगर अब इन 30 सालों में आतंकवाद का जो दंश भारत ने झेला है,
और इजराइल ने भी दुनिया भर में, अपने यहां के अलावा दुनिया भर में आतंकवाद को जिस ढंग से झेला है, तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक आधार पर भी दोनों के मन की जो पीड़ा है उसको ये साझा करने वाला ये एक क्षण है। अब इस भावनात्मक से अलग हटकर हम स्ट्रेटेजिक की बात करें तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो तकनीक चाहिए, जो दक्षता चाहिए, और मैं कहूंगा जो जिस प्रकार की एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए, उस मामले में बहुत कुछ इजराइल से सीखने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि भारत को उस चीज का भी लाभ लेना चाहिए। और अंजना जी, अंत में एक और बात कहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता हो या ना पता हो कि इजराइल शब्द का अर्थ कहां से क्या होता है और इजराइल कब बना। इजराइल का हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका की अर्थ होता है यहूदी राष्ट्र। ये 1000 BC में किंग सोलोमन ने इसको एस्टैब्लिश किया था व्हेन मोसेस मूव्ड फ्रॉम इजिप्ट टू जूडिया। आप सोचिए 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से 3100 साल पहले। और मैं कहना चाहूंगा शायद भारत और इजराइल ही दो दुनिया के ऐसे देश होंगे जो पिछले 3000 साल पहले के अस्तित्व से यथावत चला आ रहा, कंटिन्यूअम में। देखिए देश तो बहुत सारे थे, इजिप्ट वो इजिप्ट नहीं है जो 3000 साल पहले का था, ईरान वो ईरान नहीं है जो 3000 साल पहले का था, मगर भारत और इजराइल दोनों वही हैं। जो 1000 BC में इजराइल था, जो 1000 BC में भारत था। तो मैं कहना चाहूंगा दोनों दुनिया के दो प्रागैतिहासिक राष्ट्र, और जो नेतान्याहू जी ने कहा टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, और अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा आई फॉर एन आई, तो दिस इज एन आई फॉर ट्रू प्री हिस्टोरिक रिलीजन विच आर हैविंग एनॉर्मस टैलेंट and cooperation for technology for fighting against terror। जी जनरल जी बख्शी, मैं आपके पास आना चाहती हूं सर, क्योंकि इस वक्त हम मोशे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां से अगर पूरी लकीर को आगे लिए चले तो मोशे एक प्रतीक बनता है आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग का। यहीं से सवाल उठता है कि पाक प्रायोजित जो आतंक हम झेल रहे हैं उसमें कैसे इजराइल की तकनीक का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रतीक से असल लड़ाई तक का सफर ये पूरा तय हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए। जनरल बख्शी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रतीक के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चीज हमें इजराइल से सीखनी है वो है वो ऑफेंसिव लड़ाका माइंडसेट, कि हम चुपचाप बैठ के अब अत्याचार नहीं सहेंगे। यहूदियों ने जो है 2000 साल अत्याचार सहा है, उनका होलोकास्ट म्यूजियम एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है जितने अत्याचार इन लोगों पे हुए हैं। उन्होंने कह दिया है 10 फार नो फर्दर, हम अब कोई भी अत्याचार किसी का भी नहीं सहेंगे, हम उस पर पलटवार करेंगे। आप एक इजरायली की जान लें, आपके 100 हम मार गिराएंगे अगले 2 दिनों के अंदर। और देखिए, इसके चलते इजराइल के जब 2 सिपाही इन्होंने हिरासत में लिए थे हिजबुल्लाह ने, और बाद में उनका सर काट दिया था, तो उस वक्त इजराइल ने पूरा हमला बोल दिया था लेबनान के ऊपर, और कोई 1.5 महीने लड़ाई चली थी जिसमें 3 डिविजन उनकी पूरी एयरफोर्स उन्होंने झोंक दी थी। तो जब तक हमें ये आक्रामक नीति नहीं आती तब तक हम भी जो है इस तरह से मार खाते रहेंगे और मोशे बनते रहेंगे और हमारे लोगों के सर कलम होते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है भारतवर्ष, इस पे भी आक्रमण पे आक्रमण पे आक्रमण हुआ है। और हम लोग हारे क्यों हैं? क्योंकि हर लड़ाई पानीपत में लड़ी गई। हमारे देश के भाग्य का फैसला करने वाली हर लड़ाई हमारे देश के अंदर लड़ी गई पानीपत में, और तीनों पानीपत की लड़ाई आप हारे हैं। अब समय आ गया है कि पानीपत में नहीं, बॉर्डर के पार लड़ाई हो, हमारे लोग ना मरे, हम जाके उनको मारे जो हमारे लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और ये देखिए, एक बहुत भावुक मोमेंट है जिसपे ये दर्शाता है वो दर्द, और उस दर्द के जवाब में वो जो आपका अब दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसको दिखाता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां होना भी ये जाहिर करता है। अब आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि हम इसको आगे कहां ले जाएंगे, इजराइल हमको 10 हेरॉन आर्म्ड ड्रोन्स दे रहा है, हथियारबंद ड्रोन जो कि प्रेडेटर ड्रोन की बराबरी के ड्रोन है, और वो दुश्मन के इलाके में घुस के मार सकते हैं। और अब मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जब हमारे हाथ में ये 10 आर्म्ड ड्रोन आ जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 किलो का वो पेलोड उठा सकते हैं, 36 घंटे हवा में उड़ सकते हैं, और जो 7400 किलोमीटर दूर जाके आ सकते हैं, इसका मतलब अब हाफिज सईद
सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और आपका डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, वो किसी भी बिल में घुसे, हमारे पास क्षमता होगी उनको मार के ढूंढ के मार गिराने की जी। और अब हमको जो है वो पॉलिटिकल विल लाना होगा कि हम जाके दुश्मन के मांद में घुस के मार करें। जी सर। हर वार के पहले पलटवार करें जी। और चुपचाप बैठ के आतंक सहे नहीं, चुपचाप बैठ के हम जो है दुश्मन का कहर ना सहें। और हमने ये प्रतिक्रिया पिछले साल सितंबर में शुरू करी थी सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, फायर असॉल्ट के साथ। उसको अब हम इन आर्म ड्रोन्स के जरिए कैसे मुकम्मल ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। सर्जिकल स्ट्राइक करी, अब 30 साल के लिए छुट्टी। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी इस पर क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्जिकल स्ट्राइक्स इस तरह के आर्म ड्रोन्स के जरिए होंगे तो हम पीओके में कर पाएंगे, कहां कर पाएंगे, इन सब पर चर्चा होगी। क्योंकि इस वक्त ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन भावुक लम्हों के जरिए कैसे 26/11, आपने बताया 26/11 जैसे आतंकी हमले से इस देश को बचना है तो इजराइल के साथ इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, जो डिफेंस डील हम कर रहे हैं, जो आर्म्ड ड्रोन्स, हथियारबंद ड्रोन हम ले रहे हैं 10, उनके जरिए हम कैसे बेहतर रणनीति बनाएं, इन सब पर नजर देश की है। लेकिन राजीव डोगरा जी, आप तो जानते हैं कि राजनयिक संबंधों में कैसे ये प्रतीकात्मक लम्हे बहुत बड़े बन जाते हैं अक्सर, और प्रधानमंत्री मोदी उसका सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए। राजीव डोगरा जी। दोनों प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भी और इजराइल के प्रधानमंत्री भी जी सर, और बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, बहुत गंभीर संकेत दे रहे हैं। पर मैं एक सुधांशु जी की बात पे जाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका बनाई थी सिमिलैरिटीज़ की और डिफ़िकल्टीज़ की। उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, साहित्यकार होने के नाते, डिप्लोमेट होने के नाते तो हुई, कि एक थ्योरी ये कहती है कि अफगान्स जो हैं उनका ओरिजिन जूइश था। सो हो सकता है हमारा जो कनेक्शन है इजराइल और इंडिया का बहुत गहरा है और काफ़ी हज़ारों साल पुराना है। और जो ये मैं बात कह रहा हूँ बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि अफगान्स खुद भी मानते हैं कि उनका ओरिजिन जूइश था। सो जहाँ तक आज की बात है, उस ज़माने से लेके आज तक जहाँ पहुँच गए, हमारी डिफ़िकल्टीज़ भी जो हैं उनका भी नेतन्याहू साहब ने जिक्र किया था जब योगा की बात की। उन्होंने कहा जब मैं गर्दन दाईं तरफ घुमाता हूँ तो इंडियन डेमोक्रेसी दिखती है, और जब मोदी साहब बाईं तरफ घुमाते हैं तो इजरायली डेमोक्रेसी दिखती है। उनका इशारा ये था कि इन दोनों के बीच में कोई और डेमोक्रेसी नहीं है, रियल टर्म्स में कोई और कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये भी हम दोनों मुल्कों के बीच में सिमिलैरिटी भी है और एक कठिनाई भी है कि इस जो ज्योग्राफिकल गैप है जिसमें लोग खुले तौर पे बात नहीं कर सकते, शायद वही हमारी कठिनाइयों का एक एग्जाम्पल है और कठिनाइयों का कारण है। तो टेररिज्म, लैक ऑफ डेमोक्रेसी और डिफ़िकल्टी ऑफ रिजीम्स दैट वो जो इजराइल फेस कर रहा है हमास वगैरह के ज़रिए और हम फेस कर रहे हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ज़रिए, ये बड़ा मामला है जो दोनों लीडर्स में बिल्कुल ये लड़ाई जुड़ती है, अभी नहीं आएगा। बिल्कुल ये लड़ाई जुड़ती है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को, मोशे 10 साल का अब हो गया है, 2 साल का था जब 26/11 का मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। वहां से उसकी नानी उसे लेकर भागने में कामयाब हुई थी। सब कुछ छोड़कर जब ऐसे वक्त पर आतंकी हमला हो, लोग अपनी जिंदगी बचाते हैं, लेकिन नानी ने सीने से लगाकर मोशे को लेकर वहां से भागने में वो कामयाब रही। इसी वजह से आज मोशे जिंदा है, 10 साल का है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों उससे मिले, उसने एक भावुक चिट्ठी भी पढ़ी प्रधानमंत्री के लिए, और अब जो न्योता भी है उसको भी स्वीकार कर लिया गया है उनके दादा और दादी की तरफ से। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी। अब बीते दिन तक तो हम देख रहे थे तमाम विपक्षी पार्टियां इजराइल के दौरे के बारे में तो ये कह रही थी कि अच्छा है, लेकिन फिलिस्तीन वाला बार बार हैंडल घुमा दे रही थी। आज आपका क्या नजरिया है इन तस्वीरों पर, प्रधानमंत्री ने जो कोशिश की है बेहतरी रिश्तों में लाने की उस पर? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आज मोशे की जो मुलाकात है वो देखकर जो आपने कहा भावुक हो जाना, जो मुंबई से आए हैं वो जानते होंगे इसकी अहमियत।
तो क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो मेरे लिए भी ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। ये कहने के बाद मैं बस यही कहूँगी, इजराइल से जो हमारा रिश्ता है ये आज का नहीं है या प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद का नहीं है। ये 1950 से ये रिश्ता जो बना, 1953 में जब हमने उनकी कॉन्सुलेट खोली, जब हमने 1992 में उनको पूरा डिप्लोमेटिक हमने रिलेशंस शुरू किए, और उसके बाद जो हमारा ट्रेड रिलेशन शुरू हुआ, तो इजराइल के साथ हमारे दो रिश्ते बनते हैं। एक होता है जो पॉलिटिकल एंगल है जहाँ पे पैलेस्टीन आता है, दूसरा है ट्रेड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, शेयर्ड कल्चर जो अभी सुधांशु जी बता रहे थे उनका। तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात कही है, कल उनका जो इंटरव्यू आया था इजरायली अखबारों में, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा ये कहा है कि हम भी 2 स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहेंगे पैलेस्टीन और इजराइल को एग्जिस्ट करें। तो वो तो एक पॉलिटिकल अगर हम एंगल देखेंगे तो वो वही है जो कांग्रेस का रहा है, और हमने पैलेस्टीन से भी रिश्ते बनाए रखे हैं, इजराइल से भी हमारे अच्छे खासे रिश्ते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा 2011 में अगर हमारा बिजनेस रिलेशंस देखेंगे तो जो 200 मिलियन का था 92 में, वो $511 बिलियन हो चुका था। वो अब और बढ़ाने की लेकिन कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गया। रब ने बना दी दोस्ती, ये कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने कि ये अंग्रेजी की कहावत का इस्तेमाल किया, मैरिज मेड इन हेवन, यानी पूर्व निर्धारित भगवान का बनाया ये पूरा दोस्ती का नजारा है। इस बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भावुक लम्हा 26/11 में 2 साल का था मोशे, वहां से बचाने में नानी कामयाब रही थी। उसी मोशे को आप अब 10 साल का हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में आप देख रहे हैं। भावुक चिट्ठी पढ़ी उसने, सुनिए। My name is Moshe Holzberg, the son of Rabbi Gabi and Rivki Holzberg. I am 11. They are sent by Lubavitch. I am 11 years old. I was saved.